Good morning, dear kids. I am your English teacher from Mount Litra Z School, Rampura Phul. Dear kids, today we are going to start a new topic, and the name of the topic is Simple Present. Simple Present. It is a tense, but we will do it in a very simple way because tenses are basically are given in grade second. But today we are going to start just with a very simple present tense. This is page number 74 of your New Pathways book, and this topic of grammar is given at the back exercise of chapter The New Watchman. So let us start with the topic. Although we have done this topic in our previous videos also in the grammar, but today again we are just going to have a revision of the same topic. चलिए बेटे अभी स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. First of all, बच्चे, you see that here two sentences are given. The first one is the boy plays in the garden. Second one is the monkey swings from the tree. The monkey swings from the tree. तो यहाँ पे देखिए बेटे, this is boy and boy is a naming word. ठीक है, मतलब any person. Boy is a person here. And play play क्या है बेटे? It is an action word. We have already done both of these topics, naming words and action words. Naming words means name of somebody. It can be name of a place, person, thing or animal. ठीक है, और यहाँ पे instead of a naming word it can be a pronoun. He भी हो सकता है, she भी हो सकता है, you भी हो सकता है. मतलब subject can be of any. कोई भी person हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, it can be a boy, girl, कोई he she भी लिखा हो सकता है, pronoun. ठीक है. So next we have play play. And what is play? Play is an action word. Play is an action word. And what are action words? Action words means doing words. Doing words we have done in grade 1. So doing words क्या होते हैं बेटे? Which tell us about some kind of action. They tell us that what kind of action is going on. After reading these sentences, after reading these words, doing words, we come to know about a work. जैसे यहाँ पे in this sentence, here is written the boy plays in the garden. What the boys are doing? वो क्या कर रहे हैं बेटे? वो play कर रहे हैं. So ये कोई काम है. यहाँ पे उनका काम कौन सा है? Play करना. And they are playing. Next we have the monkey swings from the tree. Monkey क्या कर रहा है बेटे? Swing कर रहा है. So monkey is a subject here. मतलब जो काम कर रहा है. कौन काम कर रहा है? Monkey कर रहा है. And what work is he doing? क्या काम कर रहा है? वो swing कर रहा है. So swing is a work. It means swing is an action word, or we can say swing is a doing word. Doing word and action word, they both have same meaning. Those words which represent or which tell us about some kind of work. जिनको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है. कौन सा काम हो रहा है. ठीक है. अब हम बेटे, अब हमें क्या करना है? अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में हमें सीखना क्या है, सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है. ठीक है, ओके. अभी आप यहाँ पे देखिए, देयर इज अ सेंटेंस दैट तन्वी SINGS sings. तो बेटे यहाँ पे sing इज अ डूइंग वर्ड. sing इज अ डूइंग वर्ड. बट यहाँ पे sing के साथ S क्यों लगा हुआ है? ठीक है, यहाँ पे देखिए द डॉग्स बार्क. यहाँ पे इट इज ओनली बार्क. यहाँ पे S नहीं लगा हुआ. सिंग के साथ बच्चे S इज गिवन. सिंग्स. बार्क के साथ S इज नॉट गिवन. व्हाई? हियर इज अ रूल इन ग्रामर एंड दिस रूल, दैट रूल अप्लाइज हियर. यहाँ पे बेटे वो रूल लग रहा है. अब वो होता क्या है? लेट मी गिव यू एग्जांपल. मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ. ठीक है, वेट.
boy sleeps. ठीक है, द सेंटेंस इज boy sleeps. ठीक है, लेट मी राइट वन मोर सेंटेंस. BOYS boys SLEEP sleep. Boys sleep. Boys sleep. अब यहाँ देखिए बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस. यहाँ पे लिखा है बॉय स्लीप्स. ठीक है, यहाँ पे बेटे स्लीप के साथ आई हैव यूज्ड एस. स्लीप के साथ आई हैव यूज्ड एस. यहाँ पे बॉयज लिखा है लेकिन यहाँ पे स्लीप के साथ आई हैव नॉट यूज्ड एस. नाउ व्हाट इज द रीजन. ऐसा क्यों है कि ये जो स्लीप है दिस इज ऑल्सो ए डूइंग वर्ड. ठीक है, दिस स्लीप इज ऑल्सो ए डूइंग वर्ड, बट हियर आई हैव यूज्ड एस, बट हियर आई हैव नॉट यूज्ड एस. व्हाई. नाउ लेट मी गिव यू द रीजन कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया है. ठीक है, अब बेटे करना क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें जो एक्शन वर्ड है या फिर जो डूइंग वर्ड है उसके साथ एस लगाना है या नहीं लगाना है. एंड दिस इज द बेस और दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फार्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, कि हमें कहाँ पे एस यूज करना है एंड हमें कहाँ पे एस नहीं यूज करना है. ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है. सबसे पहला स्टेप बेटे हमें ये है, वी हैव टू फाइंड आउट द डूइंग वर्ड. इस सेंटेंस में डूइंग वर्ड कौन सा है. ठीक है, फिर हमें ये भी देखना है कि डूइंग वर्ड के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा. तो बेटे यहाँ पे इट इज बॉय. इट इज बॉय एंड हाउ मेनी बॉयज आर हियर. ओनली वन बॉय. BOY बॉय मीन्स ओनली वन बॉय. सो बच्चे अगर जो पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्लीपिंग हियर. द बॉय इज स्लीपिंग. हु स्लीप्स. बॉय स्लीप्स. तो किसके बारे में बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय जो काम करता है. कौन काम कर रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है. बॉय. सो बॉय इज अ सिंगुलर हियर. सिंगुलर मीन्स वन. बॉय इज ओनली वन. तो बेटे अगर डूइंग वर्ड से पहले जो भी वर्ड दिया हुआ है मीन्स जो सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम कर रहा है, अगर वो सिंगुलर होता है तो डूइंग वर्ड के साथ एस लगता है. डूइंग वर्ड के साथ एस लगता है. एस भी लग सकता है एंड ES भी लग सकता है. दिस यू ऑलरेडी नो कि हम कब एस लगाते हैं और कब ES लगाते हैं. ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस कंसेप्ट इन अ वेरी डिटेल. तो यहाँ पे देखिए इट इज BOYS बॉयज. When we use S or ES with any of the word, it makes the words plural or many. दो वर्ड क्या हो जाते हैं बेटे, वो प्लूरल बन जाता है. तो यहाँ पे वी हैव बॉयज. बॉयज मतलब ज्यादा बॉयज हैं. तो अगर ज्यादा है तो डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा. डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा. ठीक है, अब इसको मैं फिर से रिवाइज करती हूँ. अगर बेटे जो वर्ड है डूइंग वर्ड के साथ, ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं जो काम कर रहा है मतलब. ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी विल यूज एस और ES विद द डूइंग वर्ड. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो एक है, जैसे यहाँ पे बॉय एक था. अगर बॉय एक था बेटे तो हमने क्या कर दिया, स्लीप के साथ एस लगा दिया. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल या फिर ज्यादा है, ठीक है, ये सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि डूइंग वर्ड के साथ जो भी वर्ड लगा होता है, डूइंग वर्ड से पहले जो भी वर्ड है, अगर वो प्लूरल है, प्लूरल मीन्स मैनी मतलब ज्यादा. इफ इट इज प्लूरल देन वी विल नॉट यूज एस और ES विद द डूइंग वर्ड. जैसे यहाँ पे जो बॉयज हैं, बॉयज मतलब ज्यादा बॉयज हैं, तो हमने बेटे स्लीप के साथ एस नहीं लगाया. ठीक है, स्लीप के साथ एस नहीं लगाया. ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. अब यहाँ देखिए इट इज TANVI तन्वी. ठीक है, तन्वी. ना हु इज तन्वी. तन्वी इज अ गर्ल. तन्वी इज वन गर्ल. बेटे किसी का एक का नेम है ना तन्वी, तो सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन गर्ल तन्वी. एंड अगर ये जो है वो तन्वी, इट इज वन ओनली वन गर्ल. अगर यहाँ पे बेटे वन है तो इट मीन्स जो डूइंग वर्ड है उसके साथ एस आएगा. सो वी हैव यूज्ड एस विथ सिंग्स. एस विथ सिंग्स. अब यहाँ पे देखिए द कैट. हाउ मेनी कैट्स आर देयर. ओनली वन कैट, बिकॉज कैट के साथ एस नहीं लगा हुआ है. ओनली वन कैट इज देयर.
सो इफ इट इज वन, तो हम लोगों ने विच इज द डूइंग वर्ड, जो कैट के बिल्कुल साथ है, कौन सा वर्ड है, रन, एंड रन इज द डूइंग वर्ड, सो वी हैव यूज्ड एस विथ रन बिकॉज कैट इज सिंगुलर, कैट इज सिंगुलर। द टीचर, टीचर्स। अब देखिए टीचर, कितने टीचर्स हैं, ओनली वन टीचर, here we are talking about only one teacher, and if the teacher is one, it means which is the doing word here, teach मतलब पढ़ाना, कौन सा काम हो रहा है, teaching का, पढ़ाने का काम हो रहा है। if the teacher is only one person and we are talking about only one teacher, then teach के साथ हम लोगों ने बेटे es लगा दिया है, ठीक है। आपको पता है कि es हम कब लगाते हैं, if the word ends with ch, sh, s या फिर x। अगर इनके साथ वर्ड एंड होता है, वर्ड का एंड होता है, तो हम क्या लगाते हैं बेटे, es। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डिटेल, ठीक है। बाकी सबके साथ वी यूज ओनली s, वी यूज ओनली s, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, here the children, now who are children, बेटे एक होता है चाइल्ड, child, चाइल्ड मीन्स ओनली वन किड, या फिर एक बच्चा, चाइल्ड होता है एक बच्चा। अगर इसके साथ हम लोग बच्चे REN लगा देते हैं तो इट बिकम्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स मैनी, चिल्ड्रन मीन्स मैनी किड्स, या मैनी स्टूडेंट्स, या मैनी किड्स, ज्यादा बच्चे मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव चिल्ड्रन, इट मीन्स हेयर वी हैव प्लूरल, ज्यादा है, तो बेटे द डूइंग वर्ड इज प्ले, इसके साथ SES नहीं लगेगा, इसके साथ SES नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपको मैं सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं, अगर हमारे पास बच्चे 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, वी हैव 2 वर्ड्स, अगर आगे वाले के साथ जैसे वी हैव स्लीप एंड, हम लोगों ने स्लीप एंड स्लीप्स किया था, ठीक है। अगर आगे वाले के साथ जैसे यहाँ पे देखिए जो बॉय है, ठीक है, अगर बेटे बॉय के साथ इस वाले वर्ड के साथ एस लगा हुआ है या ES लगा है तो इसके साथ नहीं लगेगा, अगर इसके साथ नहीं लगा हुआ तो इसके साथ लगेगा। जैसे यहाँ पे साथ इसके साथ SES नहीं लगा तो हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके साथ लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज जस्ट टू कीप इन माइंड दैट I एंड यू के साथ बेटे कभी भी SES नहीं लगता, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज I एंड यू, I एंड यू के साथ कभी भी SES नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आगे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, द पर्सन हु इज वर्किंग या सब्जेक्ट है, अगर वो I है या फिर you है, देन we do not use S or ES with the doing word. In that case, we are not going to use S or ES with the doing word. ठीक है। Now let us do one exercise. इसके बाद things will be more clear to you. Things will be more clear to you. ठीक है। चलिए, yes. Now here we have sentence. This is page number 75 of your book. Page number 75. ठीक है, of new pathways. अब यहाँ देखिए बच्चे, वी हैव नंबर A, RAMU, रामू, रामू। देन इन ब्रैकेट 2 वर्ड्स आर गिवन टू अस, एक है स्विम, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, सेकंड इज स्विम्स, इसके साथ एस लगा हुआ है, इन द पूल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू सर्कल दैट, कि क्या आएगा। अब देखो RAMU, रामू, हाउ मेनी रामूज आर देयर, कितने हैं, ओनली 1 रामू, वी आर टॉकिंग हियर ओनली 1 बॉय एंड द नेम ऑफ द बॉय इज रामू। तो अगर बेटे ये 1 है, ठीक है, इफ इट इज सिंगुलर, इफ इट इज 1, देन डूइंग वर्ड के साथ SES लगेगा, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, इट इज ऑलरेडी डन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वरुण। अब वरुण इज अगेन 1 बॉय, वरुण तो बेटे किसी एक का ही नाम होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 बॉय। सो अगर ये 1 है तो बेटे इसके साथ वट एवर डूइंग वर्ड इज हियर, उसके साथ SES लगेगा। सो वरुण वॉक्स, ये रहा, इसके साथ S लगा हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव सी, आप खुद, मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड चिल्ड्रन वाला। नेक्स्ट वी हैव
you. I told you I and you के साथ when the subject is I और subject is you, तो हम लोग कभी भी डूइंग वर्ड के साथ SES नहीं यूज करेंगे. इफ द सब्जेक्ट इज I और सब्जेक्ट इज you, then we are never going to use S or ES with the doing word. नहीं करेंगे बेटे. तो यहाँ पे बेटा you है. अगर you है तो हम लोग SES नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल क्लाइंब. ठीक है. अब देखिए FE वाला आप लोग खुद करेंगे. द सन. तो बेटे सन, हाउ मेनी सन्स आर देयर? कितने सन है? ओनली वन. तो अगर इसके साथ बेटे नहीं लगा हुआ, ये वन है. अब देखिए इसके साथ एस भी नहीं लगा हुआ. अगर ये वन है तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज एस और ई एस विद द डूइंग वर्ड. तो बेटे इसके साथ डूइंग वर्ड लगेगा. तो क्या आंसर आएगा? राइजेस. द सन राइजेस. सो डूइंग वर्ड के साथ वी हैव यूज्ड एस. सो वी हैव यूज्ड एस विद द डूइंग वर्ड. ठीक है. सो द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. द कंसेप्ट इज दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम लोग डूइंग वर्ड के साथ SES लगाएंगे. या फिर सिंपल आप ये बोल सकते हो कि डूइंग वर्ड से पहले जो भी वर्ड दिया हुआ है, डूइंग वर्ड से पहले जो भी वर्ड दिया हुआ है, वो चाहे कोई प्रोनाउन है, चाहे नेमिंग वर्ड है, जो भी है, अगर वो सिंगुलर है, इफ दैट इज सिंगुलर, इफ दैट इज वन, देन वी विल यूज S और ES with the doing word. with the doing word. अगर वो S और ES नहीं लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे? अगर वो प्लूरल है. अगर वो प्लूरल है. ठीक है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी. सो जैसे यहाँ पे देखिए A, B and we have some blanks. अब इसके बारे में आई विल एक्सप्लेन जस्ट वन और टू ब्लैंक्स. नेक्स्ट विल बी डन बाय यू. यहाँ पे बेटे नंबर A देखिए. लुक एट दिस बॉय. हिज नेम इज Amit. His name is Amit. ठीक है. The name of the boy is Amit. And Amit is a singer. As you can see in the picture, Amit is singing. So Amit is a singer. Now, we have to find out the doing word. ठीक है. एक तो doing word देखना है हमें. And then we have to decide कि हमें उस doing word के साथ are we going to use S, ES or not. हमें उस डूइंग वर्ड के साथ SES लगाना है या नहीं लगाना है. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज गिवन हियर. ही, देन ब्लैंक, देन सॉन्ग्स. ही इज गिवन. उसके बाद हम क्या लगाएंगे बच्चे? डूइंग वर्ड. अब बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही? हाउ मेनी अमित आर हियर? ओनली वन अमित. ओनली वन बॉय. ठीक है. एंड सेकेंडली ही वी यूज ओनली फॉर वन बॉय. आपको पता है वी हैव डन दिस इन प्रोनाउन. ही वी यूज ओनली फॉर वन बॉय. तो बेटे ओनली वन बॉय इज हियर. इसका मतलब बेटे क्या आएगा? इसका मतलब क्या आएगा? क्या कर रहा है वो? सिंग कर रहा है. सिंग. ठीक है. SING. तो ही है. ही इज वन बॉय. सिंग इज द डूइंग वर्ड. इसका मतलब सिंग के साथ S आएगा. यस. सो हियर वी विल राइट सिंग्स. ठीक है. ही सिंग्स सॉन्ग्स. व्हाई वी हैव यूज्ड S विद द डूइंग वर्ड? क्योंकि जो ही इज अ वन बॉय. ही वी यूज फॉर वन बॉय. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वीरा इज अ ड्राइवर. वीरा इज अ ड्राइवर. अब बेटे ड्राइवर क्या करता है? वो ड्राइव करता है. ठीक है. सो शी डैश. क्या आएगा बच्चे? डूइंग वर्ड ड्राइव आएगा. बिकॉज शी ड्राइवर ड्राइव. DRIVE. ड्राइव तो हो गया है. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि इसके साथ S आएगा या नहीं आएगा. आएगा. why we will use S with this doing word? Because here we are talking about Veera and Veera is one girl. That's why we have used she. इसलिए बेटा हमने यहाँ पे क्या लगाया था? she लगाया था. So अब हम क्या करेंगे? drive के साथ हम लोग S लगाएंगे. So drives. She drives the school bus. She drives the school bus. ठीक है. उसके बाद वी हैव हियर ऑल्सो वी हैव सम एक्सरसाइज. ठीक है. ये बेटे आप लोग खुद करोगे. ये वाला आप लोग खुद करोगे. सेंटेंस नंबर D and E. D and E. दिस यू आर नॉट गोइंग टू डू. ये नहीं करना आप लोगों ने. सिर्फ यहाँ तक करना है. ठीक है. ऊपर वाला D and E. ठीक है. सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस. आई होप दिस ऑल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. एंड
We will also discuss that when do we use s and when do we use es to make the things plural. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट टिल दैट you do practice of this concept of s and es, then when to use s or es with the doing word and when not to use. So this was your English teacher from Mount Litra G School, Rampura Fort. Thank you everybody and have a nice day.